Good afternoon, students. Welcome in my English class. Today I will teach you the story and astrologer's day. An astrologer's day, the story in which there is the life history of an astrologer who belonged to a village. In the village, he started gambling and drinking, and after some time, he quarreled his friend and he tried to kill him with the knife, and in the night time he threw him into the well and left the village in that night. The person left the village and went into the city. There he changed his personality and involved himself as an astrologer. He put on the saffron color turban on his head and used vermilion on his forehead. His whole personality was very attractive and his eyes were shining very brightly. Even when he went into the city, he bought some codicils, a piece of cloth for the chart, a notebook, and a bundle of aloe vera leaves. And by taking all these things, he used to go to the marketplaces, and in the afternoon he started his business. The place where the astrologer used to sit was near the market, and in the evening time when the passers-by go for the marketplaces, they used to consult to the astrologer. Astrologer was very perfect in his business, although he was not a professional astrologer, but he was very clever and very skillful. He had the presence of mind. He very skillfully asked them about the problems of the daily life, and his clients were satisfied with him. It was the time of night, and one day the astrologer was going to collect his materials for going home because all his neighbors had closed the shops. So the astrologer also has folded his cloth and made them a bundle and was near about to go to his house. Suddenly, two or three persons came to him, and they asked him as if he was an astrologer, and if he could tell them about the future, they would give him a lot of money. The astrologer saw the face of the strangers and he was afraid of them. He ignored them and said that it was the night time and he would not tell anything today, and he would like to consult with them in the morning tomorrow. But the strangers insisted on, and they told the astrologer that if he would not consult with them, they would take all the money, whatever he has earned from the working of the day. The astrologer became very unhappy, and in the meantime, the strangers lit the matchbox for lighting the cigarette, and in the light of the matchstick, the astrologer saw the face of the stranger, and he was happy and very sorrowfully he accepted to tell the questions asked by them. First of all, they asked him whether his enemies
whether his enemy was dead or alive, and the astrologer was sure that it was the farmer whom he had killed and put into the well. So he became happy and he started to give the answer of his questions. He said that the person whom he was searching for, he had left the village 4 months ago and he died in the accident. He was no more in this world. The stranger became very satisfied and again he asked that what he could do for this. The astrologer told them all the story that he had been killed by the enemy and he had left the village, and it was his first friend who had done this. By hearing all the story, the strangers became very happy and they jumped and they gave all the money whatever they had taken, and the astrologer became very happy. That night the astrologer reached home at 11 a.m. in the night, and the wife of astrologer was very much sad for his late coming. Then astrologer sit on the pool and told him all the story that today he was very happy because a load had gone from his head. He was thinking that he had murdered a farmer in the village, but that person was quite alive, so he was happy, and the story ends at this. So children, this is the story of Astrologer's Day, and let us read the story in Hindi. बच्चों, आज एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है वो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है, और ये कहानी जो एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि गांव में रहता है, और गांव में रहते हुए व्यक्ति जो है वो खेती करते हैं, और खेती करने के साथ साथ वो जो है वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता है, शराब पीता है, ऐसे गंदे कार्य करता है। एक दिन की बात है कि वो अपने दोस्त से लड़ाई कर लेता है, और लड़ाई करके बात इतना बिगड़ जाती है कि दोनों में हाथापाई होती है, और वो अपने दोस्त के ऊपर चाकू से प्रहार कर देता है। दोस्त को चाकू गले में लग जाती है, और वो व्यक्ति जो है अपने दोस्त को मरा हुआ जान करके कुएं में ढकेल देता है रात में, और फिर गांव को छोड़ करके शहर चला जाता है। शहर में जाकर के वो व्यक्ति जो है अपनी वेशभूषा बदल देता है, एक ज्योतिषी के रूप में अपने आप को वहाँ रखता है। वो सिर पर अपनी केसरिया रंग की पगड़ी बांधता है, माथे पर जो है चंदन लगाता है, तिलक लगाता है, और आँखों में एक अजीब सी चमक है जो कि कोई भी व्यक्ति उसके बारे में पहचान नहीं सकता है। और उस व्यक्ति को ज्योतिष के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही चालाक व्यक्ति है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही तेज है। जब भी कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो आने के बाद सबसे पहले वो पूछता है कि आपको जितना आप कमा रहे हैं आपके घर में पूरा नहीं पड़ रहा है, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, आपका बिजनेस घाटे में जा रहा, मतलब इस तरह की जो घरेलू परेशानियां होती हैं उसके बारे में अपने क्लाइंट से बात करता है, लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। इस तरह से वो एस्ट्रोलॉजर जो है अपना काम शुरू कर देता है। वो जो है उसके पास 4 कौड़ियाँ हैं, एक बहुत बड़ा चार्ट है, उस चार्ट में उसने एक बड़ा कपड़ा है उसी में चार्ट बना रखा है, और कुछ भोजपत्र रखे हैं, और एक डायरी है। यही सब लेकर के वो व्यक्ति जो है दोपहर के बाद मार्केट प्लेस यानी चौराहे पर जो है अपना एक चटाई बिछाता है, और उसी पर उस सारे सामान को अपने झोले में से निकाल कर फैला लेता है। और जब भी शाम के समय लोग बाजार जाते हैं तो पंडित जी को देखते हैं, उनकी वेशभूषा देख करके लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और पंडित जी जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत ही कुशल हैं। उनके पास अपनी दुकान पर रोशनी के नाम पर कुछ नहीं है, वो दूसरों की दुकान से रोशनी लेकर के अपना काम करते हैं। और सुबह 12 बजे से लेकर के शाम तक जब तक सारे दुकानदार अपना दुकान नहीं बंद करते हैं तब तक पंडित जी भी अपना काम करते हैं। और जैसे ही उनके पड़ोसी दुकान
दुकान बंद कर देते हैं। पंडित जी भी दुकान बंद करके चले जाते हैं। एक दिन की बात है कि पंडित जी जो है, एक दिन पंडित जी अपना दुकान जो है बंद करने जा रहे हैं और उनके साथ कुछ घटना घटी है। बच्चों, जब वो गांव छोड़ करके शहर आए थे तो शहर में आने के बाद उन्होंने अपना विवाह कर लिया था और अपना घर बसा करके यहाँ रह रहे थे। तो एक दिन की बात है कि पंडित जी जो है अपना सामान समेट करके घर जाने वाले हैं, तभी उनके दुकान पर जो है 2-3 लोग आ जाते हैं और ज़बरदस्ती पंडित जी को डांट कर कहते हैं कि मेरा हाथ देखो और मुझे कुछ बताओ। पंडित जी हैरान हो जाते हैं, उन लोगों का चेहरा देखकर जान जाते हैं कि कोई दुष्ट लोग हैं और इन लोगों से मैं बात नहीं करूँगा। कहते हैं कि मुझे इस समय नहीं देखना, मैं कल आपसे बात करूँगा। वो लोग जिद करते हैं और कहते हैं कि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपका सारा सामान छीन लूँगा, आपका सारा पैसा ले लूँगा। और ये कहा करके उनमें से एक व्यक्ति जो है माचिस जला करके सिगरेट पीता है। पंडित जी धीरे से उस व्यक्ति को देखते हैं तो माचिस की तीली की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई देता है और पंडित जी तुरंत पहचान जाते हैं कि तो वही व्यक्ति है जिसको इन्होंने मारकर कुएं में फेंक दिया था। इसलिए पंडित जी श्योर हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद नखरे दिखाने के बाद कहते हैं ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। और फिर पंडित जी बहुत इत्मीनान से बैठते हैं और कहते हैं कि अगर मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा तो मुझे 5 रुपया चाहिए। तो उन्होंने कहा 5 रुपया नहीं, मैं आपको 2 गुना दूंगा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। पंडित जी ने कहा ठीक है। अब सबसे पहले उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मैं जिसकी तलाश में निकला हूँ वो व्यक्ति जिंदा है या मर चुका है। तो पंडित जी ने थोड़ा बहुत उसके हाथ को देखा और फिर सोच विचार करके बोलते हैं, कहते हैं कि वो आपका शत्रु जो है आपको मारने के बाद अब अपनी कहानी खुद बताते हैं, क्योंकि वो सारी घटना उनकी द्वारा की गई है। इसलिए वो कहते हैं कि आपके ऊपर तो उस व्यक्ति ने चाकू से प्रहार किया था। तो वो स्ट्रेंजर जो है उछल पड़ता, कहता ये तो बहुत जानकार पंडित है। कहता जी और बताइए। तो फिर हाथ देखते और कहते हैं कि उस व्यक्ति ने आपको चाकू से मार करके कुएं में ढकेल दिया था। फिर वो व्यक्ति उछल पड़ता है और कहता है कि पंडित जी और कुछ बताइए। तो पंडित जी ने कहा गुरु नायक, तुम जिसकी खोज में निकले हो वो व्यक्ति जो है 4 महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मर चुका है। अब वो अजनबी जो है बहुत हैरान हो जाता है कि पंडित जी तो इतने जानकार हैं कि मेरा नाम भी जानते हैं और खुश हो जाता है। कहता है पंडित जी और कुछ बताइए, जितना पैसा है सब उठा करके 2 गुना दे रहा है। और पंडित जी ने फिर कहा लेकिन आपके ऊपर कुछ काल रेखाएं हैं, अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन को खतरा है, इसलिए आप तुरंत यहीं से सीधे घर चले जाइए और दोबारा कभी दक्षिण दिशा में मत आइएगा। गुरु नायक खुश हो जाता है और अपना सारा पैसा दे करके पंडित जी को प्रणाम करके चला जाता है। पंडित जी जो है शाम के समय, अब रात हो जाती है, रात के 11 बज चुके हैं। अब फिर जल्दी जल्दी अपना सामान समेट करके फिर वो घर को जाते हैं और घर जा कर के उनकी पत्नी उनका इंतज़ार कर रही है। और जब घर जाते हैं तो पत्नी कहती है कि इतनी देरी से आने का कारण क्या है। तो पंडित जी अपनी सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि मेरे मन में एक व्यक्ति की हत्या का बहुत बड़ा दर्द था। मुझे लगता था कि मैंने एक व्यक्ति की हत्या किया है और इसी कारण मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जिसको मारा था अभी वो जिंदा है। और अपनी पूरी कहानी पंडित जी अपनी पत्नी को सुना देते हैं और उनसे कहते हैं कि आज मेरे जीवन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। वेल चिल्ड्रन, नाउ you have to know the summary of the story and learn it very well. An astrologer's day is the story of an astrologer who was not professionally an astrologer, but his work was such as an astrologer was failed in his category. He
was perfect in his profession. He was a clever person and very astute person, and his profession was well known among the people of the time, and they respected him as an astrologer. Although he was not an astrologer, he was a farmer, but his activities, his whole personality looked as if he was an astrologer. Well children, now you have to remember the story and astrologers day. Thanks. Now we will meet again in my next video. Have a nice day. देखिए थोड़ा ही होगा ये, आ जाएगा उतने में। अच्छा आपको देने लगे घर पे भी इससे कभी-कभी यूज किए हैं, तो उससे खत्म तो क्यों दिखा नहीं रहा है? कमरा बंद कर दे क्या है? कौन वाला? अभी एक मैम पढ़ा रहे हैं और बंद कर दीजिए। तो क्यों ये देख सो क्यों नहीं कमरा में पढ़ा रही है? ये बात नहीं समझ ये पहले वाले में पढ़ा रहे हैं, उधर वाला बंद कर दीजिए। किताब हाँ एक में खा लीजिए। ठीक है तो आओ तो बाकी बंद कर दो। प्रफुल्ल सर ये ले लीजिए वीडियो। कितने? एक खा लीजिए। किस क्लास